वेरी गुड इवनिंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो सबसे पहले मैं ये चर्चा करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे जनरल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका फॉर्म क्या होगा और उसके रूट्स कितने होंगे। फिर इसके बाद मैं इस वीडियो में बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं और इसी के साथ इसमें डिस्क्रिमिनेंट पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो लेट्स वी विल डिफाइन। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज जनरल फॉर्म of quadratic equation is a algebraical expression algebraic expression in the form of ax square plus vx plus c is equal to 0. So algebraical expression of this form is known as the quadratic equation which have the highest power is equal to 2. Clear? So where we will also define the ABC, where A comma B and C are real numbers. Okay, real numbers. For in the case of quadratic equation, so there must be A should not be equal to 0, because a 0 हो जाएगा तो equation will be reduced in the linear form. So there is the first condition of the quadratic equation. So a should not be equal to 0, and we have where a b c are also the real numbers, we have also written here. So in the quadratic equation a should not equal to 0. Clear? So there is the highest power of x is equal to 2. So x, this is also we will define the coefficient of x square, x and constant value. So this is the basic concept. So here we will find also the coefficient of x square. What will be the coefficient of x square? Coefficient of x square is equal to a, and coefficient of x is equal to v. Okay, and constant term is that is c. Okay, otherwise we can constant term written as suppose is equal to c. Okay, so this is the a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x, c is the constant value, and abc are the real numbers. ABC belongs to real numbers. So after this we will define also the roots, how many roots are exist here. So there will be just the two roots
there will be exist two roots. Because of that, the highest power of the highest power of x is equal to 2. If the highest power is of x is equal to 2, so there will be just the two roots. Suppose that is linear equation. Suppose this is if the linear equation is called the highest power is 1, there will be the only one roots exist. If the cubic equation cubic polynomial, so there must be just the three roots, because the highest power of x is 3, so there will be the three roots here. But here we are discussing about the quadratic equation. So the highest power of x is equal to 2, so there must be just the two roots. Now supposing the two roots, let us suppose that, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसको सपोज करते हैं. लेट अस सपोज दैट the roots are alpha and beta. Okay, so there will be only two roots, alpha, and this is also written as alpha and beta are the values of x. We can also written as x is equal to alpha and x is equal to beta. Okay, because there will be the two roots. Now you can suppose also this is the x1 or this is the x2. Okay, so there are the two values of x, that is called the roots. So we will suppose here alpha and beta. So there is no need to write the x1 x2, so we write the x equal to alpha, x equal to beta, because there are the two values of x, alpha and beta. Okay, so after this we want to calculate the nature of roots. So we must we will define the discriminant. So नेचर ऑफ रूट्स यानी वी हैव द वैल्यू जो हमने एक्स और एक्स की वैल्यू बीटा और अल्फ़ा जो कैलकुलेट किया, इट मीन्स दैट एक्स की दो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा और बीटा जो मैंने कैलकुलेट किया है, तो इसके नेचर क्या होंगे यानी किस टाइप के रूट्स होंगे, तो उस पर चर्चा करते हैं. तो फॉर बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स वी विल डिफाइन द डिस्क्रिमिनेंट. व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट? सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट पर बात करूंगा. डिस्क्रिमिनेंट is supposing discriminant is defined as d is equal to, this will be the b square minus 4ac. Okay, so this is the called the discriminant. The nature of roots, it means that the alpha and beta जो किस टाइप की वैल्यूज़ होंगी यानी किस टाइप के रूट्स होंगे, नेगेटिव होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे या रूट डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे. इन सारी चीज़ों को जो डिफाइन करती है वो डी से डिफाइन करते हैं. तो ऑल दिस द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट. डी की वैल्यू पर डिफाइन करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बी स्क्वायर, व्हाट इज़ द बी and a and c, all the real numbers which are already in quadratic equation, that will be also given in the quadratic equation by comparing with the standard form. So we will calculate the ABC. Okay, so after this there will be the three conditions arising here. There are three conditions
आर arising here। तो 3 कंडीशंस यहाँ पर इसकी डिफाइंड है। तो उन कंडीशंस पर देखते हैं क्या कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द फर्स्ट कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स जो डिफरेंट, रूट्स आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट ओके। तो इसका डिस्टिंक्ट का मतलब है कि डिफरेंट रूट्स होंगे और वो भी कैसे होंगे, रियल होंगे, यानी दोनों वैल्यूज सेम आएंगे। तो कंडीशन इसके लिए यहाँ पर जो है क्या होगी, d इज़ ग्रेटर 0। अगर d की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे ग्रेटर अगर 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, यानी वैल्यू कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, वैल्यू डजंट मैटर, बट दैट शुड बी द ग्रेटर देन 0 ओके। तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड नाउ the second condition is, this is the second condition is roots real and equal। roots are real and equal। so what will be the condition for the real and equal roots? so d should be इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इट मीन्स दैट अल्फा द वैल्यूज ऑफ द एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी द इक्वल। सपोज अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों क्या आएंगी, सेम वैल्यूज हो जाएंगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द रियल एंड इक्वल रूट्स। आफ्टर दिस वी नाउ द थर्ड कंडीशन इज दिस, and now third condition, d is less 0। d is less 0 in this condition it means that यहाँ लिख सकते हैं कि roots does not exist, roots does not exist। यहाँ का मतलब रूट्स, तो देखिए यहाँ पर क्लास अगर 10th की बात करें तो रूट्स 10th में केवल रियल्स की बात किया गया है। तो रूट्स तो डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स तो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और रूट सकते हैं कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एक कंडीशन, अगर इसको लिखने के बजाय अगर हम कुछ और लिख देते हैं इसको हटा के, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये भी लिख सकते हैं कि कोई रियल रूट्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब रियल रूट्स का मतलब इट मीन्स दैट डी की वैल्यू अगर लेस आ गई 0, सपोज -2 -3, यानी कुछ भी वैल्यू आ जाए, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो इट मीन्स दैट द नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगी, यानी रूट्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, लेकिन ये क्लास 10th के एबव चला जाएगा, क्लास 11th में चला जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, केवल यहाँ पर रियल रूट्स पर ही चर्चा करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स लिख सकते हैं व्हेन d इज लेस 0 द नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट देयर। ठीक है, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन क्या कैसे रूट्स होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो उसकी चर्चा क्लास 11th में होगी, बट यहाँ पर ये है, इफ़ द d इज लेस 0 देन वी कैन राइट देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, सो दिस इज़ द नेचर ऑफ, अगर एक समराइज करके बात करें तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर बताया है कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि d की वैल्यू अगर फर्स्ट कंडीशन में अगर ग्रेटर 0 है तो क्या है, रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और तो सेकेंड कंडीशन पे मैंने यहाँ पर बात किए थे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल आती है तो रूट्स वहाँ पर क्या हो जाएंगे,
रियल और इक्वल रूट्स आ जाएंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू वहाँ क्या है, दोनों सेम वैल्यू आएंगी। एंड नाउ थर्ड कंडीशन, डी इज लेस जीरो देयर नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, रूट्स इमेजिनरी होंगे, वो आपकी क्लास के एबव चला जाएगा। तो इस वजह से केवल आपको यही कंडीशन निगेटिव अगर आती है, डी की वैल्यू जीरो से लेस आती है, यानी डी इज लेस जीरो, सो वी कैन राइट हेयर नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, तो ये तो इसकी बात हो गई। अब सबसे पहले यहाँ पर और एक चर्चा करते हैं कि इसका जो रूट्स है, अगर रूट्स गिवन हैं, टू रूट्स गिवन हैं, तो उसका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये भी इस वीडियो में मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैं कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा be the roots of alpha and beta be the roots of a quadratic equation, then find it, comma, then find it। ओके, तो इसको कैसे हम फाइंड करते हैं। सपोज यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की दो वैल्यूज़ यहाँ पर ऑलरेडी अगर गिवन है, क्वेश्चन में दे दिया गया, तो उसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे, तो इस पर भी एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू इम्प्लाइज सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा वी विल कैलकुलेट बिकॉज अल्फ़ा एंड बीटा विल बी गिवन, एंड आफ्टर दिस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स we can find the product of roots easily, alpha into beta, because alpha and beta will be given there। ठीक है, तो इसका मैंने ये कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करने के बाद इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखते हैं क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, इसको थोड़ा सा आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। तो हियर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये याद रखना है कि प्लस माइनस कॉन्सेप्ट चलता है। तो दिस विल बी द माइनस प्लस माइनस, सो दिस विल बी द सम ऑफ रूट्स एक्स, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द पॉलिनोमियल इन एक्स। आपको कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, आप एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस चलता है तो प्लस होगा, अल्टरनेटिव भी चलता है। तो यहाँ अगर प्लस है ये, तो प्लस माइनस करके चलता है, तो यहाँ पर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट विल बी इक्वल टू 0। सो ओके, तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड। आप अल्फ़ा और बीटा का सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और इसमें रख देंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज आप ये यहाँ पर दूसरा एक फार्मूला और यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली। इफ़ सपोज यू फॉरगेट दिस फार्मूला, सो वी कैन अप्लाई ईजली और दिस वन, you take the one variable like this and subtract x minus alpha into x minus beta। okay, अल्फ़ा एंड बीटा will be given there। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन रहेंगी। कोई सा एक वेरिएबल आपको ले लेना है x और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है अल्फ़ा और बीटा, और मल्टीप्लिकेशन करके इसको इक्वल में आपको रख देना है। दैट विल बी ऑल्सो
quadratic equation, otherwise you multiply this one, you will get the same as above। ठीक है, ऐसा ऊपर आपको मिल जाएगा जैसा कि आप चाहें। तो ये दोनों एक ही जैसा है, बट आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप फार्मूले में वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो फार्मूले ऊपर वाला यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वाला, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप उसको कर सकते हैं। तो एक तो बात ये हो गया। अब इसमें हम सपोज़ फैक्टराइजेशन मेथड, अगर हमें इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं और उसकी अगर हम रूट्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए देखिए क्या है, बहुत सारी मेथड्स हैं। उन मेथड्स पर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से मेथड्स मैं अगले में चर्चा करूँगा। मेथड्स यहाँ पर मैं डिस्पैच कर रहा हूँ। तो कौन से मेथड्स हैं, तो मेथड्स यहाँ पर, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड्स हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कितने मेथड्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात यहाँ पर देखें तो एक फैक्टराइजेशन मेथड है। तो सबसे पहले यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर उसके अगर कर लेते हैं, यानी जो प्लस और माइनस में जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर देते हैं और वहाँ से इक्वल करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करके हम फैक्टर करते हैं, तो वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इस मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड दूसरा मेथड है कि हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक में रिमाइंडर थ्योरम का यूटिलाइज करके भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का यूटिलाइज करके भी आप उसकी x की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और थर्ड केस यहाँ पर है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूटिलाइज करके हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी टाइप का अगर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूटिलाइज करके हम वैल्यू कैलकुलेट आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो बेसिक है, ये जनरल एक फार्मूला है जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यूज़ हैं, चाहे वो रियल हो या इक्वल हो, किसी टाइप के भी अगर नेचर ऑफ रूट्स हैं तो उसको क्या करेंगे, इसको फाइंड कर देता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो ये पावरफुल फार्मूला है, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी टाइप का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कि यहाँ पर फैक्टर करने के लिए आता है कंप्लीटिंग मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स क्या है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में चर्चा किया है। तो ये सारे जो 4 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम, क्वाड्रेटिक फार्मूला, मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।